friends, my name is Deepika. Welcome back to the channel. I have just uploaded a video about my channel, that I have introduced my channel to you people, that this channel is going to be all about my journey of Canada and till now, and yes, my journey and my timeline and whatever is going around in my life in Canada till now with my kid. I'm living with my husband here in Canada. So yes, this channel is all about the life of Canada and the things which we are facing in Canada, and till now it is very good. We have experienced a lot of good things here and our life has changed now, but before this we have faced lot of things that हमारे जैसी जो फैमिली है वो ये फेस ना करें, इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है. एंड बिकॉज आई नो दैट मेरे जैसे जो लोग हैं, जो मेरे जैसी मदर्स हैं, वो चीज़ फेस कर रहे हैं और आई थिंक आने वाले टाइम में वो ना करें. इसीलिए मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. बिकॉज मैंने वो इन्फॉर्मेशन लेने के लिए पता नहीं कितनी वीडियोस देखी और कितना स्ट्रगल किया, बट मुझे कुछ नहीं मिला. और अगर मेरे साथ किसी का एक्सपीरियंस जुड़ता है तो मुझे ऐसा लगता है कि ओके, आई हैव समथिंग विद मी और इसके साथ मैं आगे बढ़ सकती हूँ. बिकॉज येस, आई एम गोइंग टू बी अपलोड many videos related my stuff I'm doing here, and this video is all about my timeline. that मेरी जो timeline थी, जो मेरी spousal sponsorship की timeline थी, this video is all about that. So let's get start the video with the timeline. Friends, my timeline has started in June 10, 2021. तो जो मेरी टाइमलाइन थी उसका जो टाइम था, जो हमने अप्लाई किया था अंडर आउटलाइन स्पॉन्सरशिप. It is coming in family sponsorship and we have applied for spousal sponsorship outline, and there is two type of sponsorship. एक होती है inland और एक होता है outline. So we have applied for outline. Outline is like कि मैं इंडिया में रह रही थी और मेरे हस्बैंड कनाडा में रह रहे थे. So that was like outline sponsorship, and we have applied in June, and on 10th June 2021 we have applied. And see, after applied we thought that okay, 3-4 months में हमारा जो AOR है वो आ जाएगा, that is acknowledgement of received, but it was not working that time. And yes, we have waited 3-4 months. We have like June, July, August, and then September. On 22 September we have got the news that we have received the acknowledgement of receipt, that is AOR, कि IRCC की तरफ से हमारे पास एक मेल आया कि okay, we have received your file and now हम इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे. And after that we got the application number also. Like my husband called IRCC, and then IRCC gave him all the number of the file, and through that number we can contact IRCC that okay, now हमारी जो फाइल है वो किस प्रोसेस पे है, क्या चल रहा है फाइल में, और all that thing. And after that when we have like received the AOR, उसके थोड़े टाइम बाद ही हमारा जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के लिए जो एक पोर्टल है वो गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई हो चुका था कि दैट अब आप जो स्पाउसल स्पॉन्सरशिप वाले हैं वो लोग अपना जो स्टेटस है वो आप चेक कर सकते हैं आफ्टर रिसीविंग AOR. अगर आपका AOR आपके पास है then you have checked your status in that portal. Okay, then fine. After that we have again waited for 4 months. Like it's been 4 months, no update again. September, then October, November, December, then January. In January, on I think 12th of January 2022 we have got the biometric, and that was not for my son. मेरे बेटे के लिए कोई बायोमेट्रिक नहीं आया था, सिर्फ मेरे लिए बायोमेट्रिक आया था. और वो बायोमेट्रिक मैंने ऑफ कोर्स सी बात है, उस टाइम पे बायोमेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो नहीं लेनी पड़ रही थी. डायरेक्टली हम अपॉइंटमेंट जो है जिनको बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर आता है वही अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. उससे पहले थोड़ा मेस्ड अप चल रही थी थिंग्स. सो उसके बाद फिर हमने बायोमेट्रिक 17th को हमने बायोमेट्रिक दिया, एंड 17th के बाद फिर सेम डेट मेरा बायोमेट्रिक अपडेट हो गया. एंड आफ्टर गिवन द बायोमेट्रिक, द वेट like
बहुत बहुत लंबा वेट हो गया। देन जनवरी के बाद बायोमेट्रिक अपडेट होने के बाद वी हैव वेटेड लॉट्स ऑफ मंथ्स लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड देन फाइनली अगस्त 12 अगस्त को मुझे मेडिकल लेटर आया। फाइनली वी हैव गॉट द मेडिकल लेटर इन आवर हैंड एंड मेडिकल लेटर फॉर मी एज वेल एज फॉर माई सन। बायोमेट्रिक मेरे बेटे के लिए नहीं आया था, बट येस मेडिकल लेटर इज फॉर मी एज वेल एज फॉर माई सन ऑल्सो आई हैव रिसीव्ड। एंड ऑन दैट सेम डे लाइक गॉड ग्रेस था मुझ पे कि ऑन दैट सेम डे मुझे प्री अराइवल लेटर, जो प्री अराइवल सर्विस लेटर होता है वो भी मुझे रिसीव हुआ। एंड ऑन दैट डे आई फील वेरी रिलीव्ड एट दैट टाइम कि ओके नाउ समथिंग इज हैपनिंग लाइक अब मेरा वीज़ा थोड़ा प्रोसेस में चल रहा है। एंड देन 12 अगस्त को हमें मेडिकल लेटर आया एंड देन 20 अगस्त को हमने अपॉइंटमेंट लिया एंड 20 अगस्त को मेडिकल देने के बाद हमने आई थिंक वेट किया 10-15 डेज और इन 10-15 डेज वी हैव रिसीव्ड द email that you have passed your medical and I know that date. I think it was 1st of September 2022 and we have got the email that you have passed your medical. And after medical I think ये होता है कि अगर आपको प्री अराइवल सर्विसेज आती हैं तो उसके 10-15 और 20 डेज के बाद आपको डायरेक्टली पीपीआर आ जाता है। बट द कन्फ्यूजन वॉज कि हमें मेडिकल और प्री अराइवल दोनों एक ही दिन आए थे, तो हमें नहीं पता था कि हमें डेज कहाँ से काउंट करने हैं। जब हमने मेडिकल पास कर लिया है तब से काउंट करना है या फिर हमें जिस दिन प्री अराइवल सर्विस आई उस टाइम से हमें काउंट करना है। So like I don't know about that, so we have waited again and finally on 6th of September my wait was over at that time and yes I got the PPR. मुझे PPR की रिक्वेस्ट आई ऑन 6th September 2021 और आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज क्राइड एट दैट टाइम कि मुझे और मेरे बेटे को अब अपने हस्बैंड के साथ रीयूनाइट करने का टाइम मिल गया है, मुझे वीज़ा मिलने वाला है एंड एज अ फैमिली वी आर गोइंग टू बी लाइक एट द सेम प्लेस एंड we were very happy at that time. My family was very happy and yes after that we have received the PPR on 6th and we have decided that there is two options, like you want to go for in person for VFS or you wanna go to courier service. So आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, आप कुरियर सर्विस से जाना चाहते हो, अपने पासपोर्ट को सबमिट कराना चाहते हो या फिर इन पर्सन, बिकॉज कोविड के टाइम पे इन पर्सन नहीं होता था। ड्यू टू कोविड वो कैंसिल कर दिया था कि आप इन पर्सन जाके अपना पासपोर्ट सबमिट नहीं करा सकते। तो हमने क्या किया, हमने प्रेफर किया कि हम दिल्ली के पास रहते थे तो हमने सोचा कि हम दिल्ली में जाके अपॉइंटमेंट लेके तब अपना पासपोर्ट सबमिट कराएंगे एंड लकीली वी गॉट द अपॉइंटमेंट ऑन 8th of September एंड आई डायरेक्टली गो टू द ऑफिस ऑफ VFS एंड मैंने अपना जो पासपोर्ट है वो सबमिट करा दिया ऑन 8th of September। देन अगेन मैंने सोचा कि अब आई थिंक 10-15 डेज लगेंगे और आई थिंक मोर देन दैट भी लग सकता है, बिकॉज मैंने सुना है कि आई हर्ड दैट कि एटलीस्ट 15-20 डेज और आई थिंक 1 month भी कभी कभी लग जाता है फॉर लाइक पासपोर्ट स्टैम्प के लिए इतना टाइम लग जाता है। तो आई थॉट ओके ठीक है अब तो 10-15 डेज हो जाएगा, अब तो मे बी 10-15 डेज लगेगा। तो लकीली आई गॉट माई passport back and it was I think 14th September 2022 and yes on that day I was very happy कि यार मेरा तो पासपोर्ट बहुत ही जल्दी आ गया और मेरे पास जो मेरा स्पाउसल स्पॉन्सरशिप पोर्टल है उसके ऊपर भी मुझे अपना ट्रैवल डॉक्यूमेंट आईडी शो हो गया दैट आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है एंड यू हैव द ट्रैवल आईडी नंबर लाइक आवर वीज़ा नंबर। So on that time I was very happy and yes for submission I think आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है फॉर द VFS बट yes अगर आपको अपना पासपोर्ट बैक लेने जाना है फॉर द इन पर्सन थिंग तो आपको उस टाइम पे अपॉइंटमेंट लेने की नीड नहीं होती, बस आप अपने बिजनेस डेज कोई भी बिजनेस डेज पे आ जाके अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। So like from Monday to Friday you can go anytime and you can pick your passport from there. So
that day I collect my passport from the VFS and I got my passport in my hand, and I was very happy कि okay finally like me. And yes, I think generally ये होता है कि 1 to 12 मंथ का प्रोसेस है, एंड इन बिटवीन आपको जो है रिजल्ट मिल जाता है. बट नाउ इन दीज डेज द प्रोसेस आई थिंक बिट ईजियर, एंड अभी जो हो रहा है वो बहुत जल्दी हो रहा है सब कुछ प्रोसेस. ऑनलाइन इट्स शोइंग दैट फॉर आउटलैंड इट्स 18 months and for inland it is 14 months for the spousal sponsorship. So I am very lucky. मैं अभी भी बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं अभी अपने हस्बैंड के साथ अपनी लाइफ कनाडा में अपने बेबी के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, बिकॉज बहुत सारी मेरे जैसी फैमिलीज़ हैं, बहुत सारे मेरे जैसे लोग हैं जो कि मैं अपने आप को कनेक्ट कर पा रही हूँ बिकॉज मैं अपनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ. हो सकता है मुझसे लाइक आई एम नॉट द राइट पर्सन, बट या आई एम जस्ट गिविंग माई एक्सपीरियंस, माई thoughts to you, and don't be give your hopes. like आप अपनी hope कभी मत give up करना, because patience is one big thing. अगर आप में patience है तो आप कोई भी चीज़ टेक ओवर कर सकते हो. सो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि जो मेरे जैसी मदर हैं इंडिया में बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, डोंट वरी. इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट माय प्रोसेस, एनीथिंग अबाउट द process which I faced till now, which I feel till now, so you can ask any question to me, comment below, or like subscribe my channel so that मुझे थोड़ा encouragement मिले और मैं आप अपने जो videos हैं वो आप तक पहुंचा सकूं, and as well as जो मेरा experience है वो आप लोगों तक पहुंचा सकूं. मेरे यहाँ आने तक मैंने बहुत चीज़ें face की हैं, बहुत चीज़ें मैंने experience की हैं. मैं जब भी अपनी प्रोसेस कंप्लीट कर लूँगी देन आई क्रिएट अ चैनल अबाउट माई प्रोसेस, कि मैंने अपनी प्रोसेस को कैसे कैसे फॉलो अप किया और मैंने क्या क्या किया. दिस इज़ अ शॉर्ट लिटिल वीडियो अबाउट माई प्रोसेस, एंड आई थॉट दैट आपको ये हेल्प करेगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया. एंड माई टाइम लाइन वॉज नॉट टू लॉन्ग, बिकॉज मेरे जैसे आई थिंक बहुत सारे और भी लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं. बिफोर 2021 से वो वेट कर रहे हैं, एंड आई होप सबको जल्दी वीज़ा मिल जाए और सब अपनी फैमिली के साथ दोबारा से रीयूनाइट हो जाए यहाँ पे आके. और यहाँ पे बहुत स्नो पड़ रहा है इस टाइम, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू पीपल, एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल. आई एम होपिंग दैट मैं जो भी यहाँ देखूँ, जो भी मैं कर रही हूँ यहाँ पे, लाइक टोटली मैं आप तक पहुंचाऊं अबाउट द प्रोसेस, अबाउट द सिन नंबर, हाउ टू अप्लाई द सिन नंबर, हाउ टू डू द थिंग्स व्हेन एवर यू आर कमिंग हेयर विद अ किड. सो मैं चाहूँगी कि मैं वो एक चीज़ आप लोगों तक अपनी पहुंचाऊं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल, एंड येस, प्रेस द बेल आइकन so that you receive the notification if I upload any video regarding this. So thank you for watching, and be happy always.